Hello my dear student, today in this lecture video of standard 8th lesson number 9 discount and commission we are going to start. Okay, so before starting we should know what do you mean by percentage, and this percentage words already you learn in lower classes, right? So let us go through the percentage. Suppose if I am writing just in your textbook, you can see, let us recall in that 12 upon 100 is there. So this 100, it means that it will this we call as a percentage. So 12 upon 100 means how we can write? We can write here 12 and this we can write percent. It is in word, okay, and symbolically we can write as 12%, right student? मतलब जो 12 upon 100 है, तो ये जो 100 है इसे कहा गया है upon 100 को percentage. Okay, so we can write in two ways, that is in word also and in symbol also. In word, this one percent, that is 12%, and in symbolically this we call as a symbol of percentage, and this it is written in word. Okay, now same way 47% दिया है, so how we can write 47 up and down we have to write the 100, like this way you can write. Okay, and 86% how you are going to write? Same way, 86 percentage means upon 100. Okay, and here also see 4% of 300 is given. So now I am going to write in the notebook 4% of 300. It means that 4% means how we are writing? 4 upon 100 है ना, of means into, and this 300 we have to write here. So this 20 will cut from here, so what will remain here? 12. ठीक है, so this is the answer, means here what you have to write? 4 upon 100. Okay, and this 20 will cut from this 20 of 300, so what remain? 4 3s are 12, so answer is 12. Okay student, the same way here also 70 of means multiplication, 15% means we have to write 15 upon 100. So this 20 will cancel with this, and if you are going to do the product of these two number, definitely the answer you will get the 255. Okay, this already percentage, how we are going to find the percentage, already you learn in lower classes. Now we are going to start a new chapter, that is new topic, that is a discount and commission from standard 8th. अब discount क्या होता है? So let us see. Discount means क्या? To increase the sale of an item, shopkeeper sells item at reduced prices than its mark price. This reduced price is called discount. It means that कोई भी शॉपकीपर को अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो जो मार्क प्राइस होता है, ठीक है, जो टैग लगा हुआ रहता है, उससे क्या करता है, वो कुछ डिस्काउंट देके वो चीज़ सेल करता है. जैसे कि सपोज आपकी जो बुक्स की कॉस्ट है, अगर सपोज कोई भी बुक है, अगर कॉस्ट ऑफ वन बुक की जो कीमत है, अगर सपोज 30 रुपीज़ है, सो दिस शॉपकीपर वॉन्ट टू सेल दिस बुक, है ना, मतलब शॉपकीपर को एक बुक की जो टैग है, मतलब मार्क प्राइस जो बोलते हैं, टैग जो कहते हैं, वो 30 रुपीज़ है. अब उसको ये बुक सेल करनी है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि 2% जो है ना, 2 रुपीज़ में कम करके दूंगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द 20 रुपीज़ यू हैव टू गिव टू सेलिंग, है ना, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस. मतलब जो आप वो 2 रुपीज़ कम करके दे रहा है, वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, अपनी ये जो बुक है वो आपको सेल कर रहा है. कितना डिस्काउंट देके? 2 रुपीज़ को डिस्काउंट देके वो सेल कर रहा है. ओके, दिस वी कॉल्ड एज अ डिस्काउंट. हैव यू अंडरस्टूड? अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मतलब मार्क प्राइस मीन्स एक्चुअल बुक की कीमत कितनी थी? 30 थी, और उसने सेलिंग कैसे किया? 2% डिस्काउंट देके किया. मतलब कितना होगा फिर? डिस्काउंट कितने का आएगा वो आपको निकालना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस मीन्स डेफिनेशन क्या है? द प्राइस ऑन दैट टैग इज द मार्क प्राइस. अभी बताया कि बुक की जो बुक की जो लेवल में जो लेबल होती है, उस बुक में कितने रुपीज़ का था? 30 रुपीज़, और वो टैग को ही कहते हैं हम मार्क प्राइस. नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस ऑफ एन आइटम, ठीक है, जैसे बुक की जो कीमत थी, एट विच इज एक्चुअली सोल्ड बाय शॉपकीपर. मतलब सेलिंग प्राइस में क्या होगा? वो बुक की जो भी प्राइस रहेगी, ठीक है, वो आइटम की, उसमें जो शॉपकीपर सेल करेगा वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है. कितने भी बुक, मतलब कोई भी अमाउंट में वो सेल करता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइजेस. ओके, एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस वन, ओके, एज सुन एज वी now
formula discount, so we have, if you are going to find the percentage discount, so we have to use this formula, that is discount is equal to mark price into x upon 100, means mark price upon 100 into x. This is the actual formula to finding the percentage discount. And if you are going to find the discount, then you have to use this formula, that is mark price minus selling price. Hope you understand. Now let us go through the exercise from your test book. ठीक है, now we are going to solve the exercise. So practice set 9, we are going to start practice set 9.1. okay, so what is given here? If mark price is rupees 1700 and selling price is rupees 1540, then find the discount. मतलब आपको मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो हमें लिखना होता है गिवन में. तो लेट अस राइट द फर्स्ट सॉल्यूशन. व्हाट इज गिवन? मार्क प्राइस दैट इज रुपीज 1700 दिया हुआ है. नेक्स्ट आपको दिया है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कॉस्ट इज 1540. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट, है ना. डिस्काउंट कितना होगा? तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट फाइंडिंग? यस, वी नो दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या करता है? वो हमेशा कम करके देता है जो भी मार्क प्राइस से होता है. ठीक है, तभी तो उसको डिस्काउंट होगा ना. तो उसको कितना डिस्काउंट हुआ? तो मार्क प्राइस कितना है? रुपीज 1700 माइनस वी हैव टू रिड्यूस इज 1540. आफ्टर सबट्रैक्शन ऑफ दिस व्हाट वी गेट 160. मतलब डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 160 रुपीज़ का दिया. सो व्हाट यू विल राइट द आंसर, डिस्काउंट इक्वल टू रुपीज 160. हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स मार्क प्राइस जो टैग प्राइस है वो रुपीज़ 1700 था, सेलिंग प्राइस था 1540. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट एंड वी नो द फाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फार्मूला, दैट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. So put the value of mark price and selling price here. So we will get the answer 160 and that will be the answer of the discount. Okay. Now we are going to solve the second question. Second question क्या है स्टूडेंट? If mark price आपको दिया है 990 and percentage of discount is 10. Okay. आपको यहाँ पे percentage discount दिया है 10 and you have to find the selling price. मतलब selling price कितनी होगी वो find करना है. So whatever the given चीज़ है वो हम लिखेंगे. पहले हमें क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 990 दिया हुआ है. ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है आपको स्टूडेंट? यहाँ पे देखो डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट है 10% है. और वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. ओके, तो हमने फॉर्मूला लिखा था डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या फाइंड हमारा फॉर्मूला था? यस, हमारे पास दो फॉर्मूला, आइदर आप ये लिख सकते हो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू x अपॉन 100, और यू कैन राइट x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. x कितनी दी हुई है यहाँ पे? यस, x मीन्स यहाँ पे 10 है. यहाँ पे 10 अपॉन 100 इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस. हाउ मच इज गिवन? रुपीज 990. सो पुट हियर 990. ओके, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. देयरफॉर 10 into 990 upon 100 is equal to discount. Okay, so this 20 will cut with this 0 and you will get the discount. How much? Rupees 999. Okay, as soon as you will get the discount, and we know the formula of discount. Discount is equal to what? डिस्काउंट फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखो. या तो आपको पता है आपको क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस्ड माइनस डिस्काउंट. सो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? 990.
990 माइनस डिस्काउंट ₹99। सो आप जब ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 891 मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस ₹891। हैव यू अंडरस्टूड? सो सेम वे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा ही दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस अब दिया हुआ है। ओके पहले मार्क प्राइस दिया था, अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको डिस्काउंट दिया एंड मार्केट प्राइस आपको फाइंड करना, जस्ट इसका ऑपोजिट वे में है। ठीक है स्टूडेंट, सो ट्राई टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू गो टू सॉल्व। ओके फोर्थ क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो फोर्थ क्वेश्चन, लेट अस रीड फोर्थ सॉल्यूशन। द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज़। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब उसका टैग कौन सा प्राइस है, कितना है फैन का कॉस्ट 3000 रुपीज़ है। शॉपकीपर गेव 12%, जो शॉपकीपर था उसने सेल किया 20% डिस्काउंट, नो सॉरी 12% डिस्काउंट देके ऑन इट। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। आपको डिस्काउंट कितना दिया और सेलिंग प्राइस क्या थी आपको वो फैन की निकालनी होगी। तो सबसे पहले जो गिवन होता है आप वो देखिए, पहले क्या दिया, मार्क प्राइस दिया हुआ है ना, मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको। सो आप लिखोगे मार्क प्राइस इक्वल टू ₹3000। ओके, और क्या दिया हुआ आपको, डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल टू कितने प्राइस दिया है, 12%। एंड यू हैव टू फाइंड हियर सेलिंग प्राइस। ओके सो परसेंटेज डिस्काउंट दिया है तो आप परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करो। वी नो परसेंटेज डिस्काउंट x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस्ड। दिस फॉर्मूला वी नो। ओके नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is here 12% upon 100 is equal to discount. Okay so discount we have to find. Discount upon mark price is ₹3000. Now cross multiply 12 into 3000 upon 100 is equal to discount. Okay now cancel it, this 2 0 will this 0 1. So how much answer we are getting, 360. So therefore discount is equal to 12 3s are 360 rupees. Okay, as soon as you are getting discount you can find the selling price. We know selling price is equal to mark price minus discount. Okay so what is the mark price here, 3000. what is the discount here, 360. so reduces 3000 में से 360 गया तो कितना बचा, 2640. that is your selling price. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो सेम वे आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो ईजी. नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 7. ओके हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व. आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज़. मतलब 10% का डिस्काउंट करने के बाद जो कस्टमर था उसको कितने रुपीज़ मिले, 70 रुपीज़. टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिलिंग द बॉक्सेस फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. जैसे कि यहाँ पे दिया है मार्क प्राइस ऑफ द आइटम्स कितने का था, मार्क प्राइस 100 रुपीज़ का था. ठीक है, जो मार्क प्राइस है वो कितने रुपीज़ का दिया हुआ है आपको, 100 रुपीज़ का दिया हुआ है. देयरफॉर फॉर कस्टमर डैट आइटम कॉस्ट, उस आइटम का कॉस्ट क्या होगा, 100 में से कितने को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 10% डिस्काउंट तो डैट इज कितना होगा, 90 रुपीज़ का होगा. ठीक है, तो हैंस व्हेन द डिस्काउंट इज, कितना डिस्काउंट दिया था हम लोग ने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था. ठीक है, देन द सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, ऑफकोर्स ये 90 होगी. ओके सो सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज कितने रुपीज़ का है, यहाँ पे 17 का है. अगर 17 रुपीज़ का डिस्काउंट होता तो सेलिंग प्राइस कितना का होगा. सो क्या होगा, x अपॉन 17, 90 this 90 upon this 10. So after cross multiplication what you will get, 90 into 17 upon 10. So this 0 we cancel, 17 9 is how much, 153. So customer will get the item how many rupees, 153 rupees, like this way. Okay, have you understood? Now question number 8 I am just leaving for you, you have to try it by own. Okay, try to solve. इट इज़ वेरी इजी. सेम चीज़ है, शॉपकीपर जो डिसाइड किया, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. ओके
स्टूडेंट्स, ये जैसे कैसे दिया है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर डिसाइड टू सेल अ सर्टन आइटम। एक शॉपकीपर ने डिसाइड किया कि वो कुछ आइटम को बेचे, तो उसने जो टैग था, ही टैग द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस। जो भी टैग दिया था उससे उसने सोचा कि मैं मतलब वो टैग को इंक्रीमेंट 25% इंक्रीज करके बेचूँ। जब उसने बेचा, वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। उसने क्या किया, उस आइटम में 20% डिस्काउंट दे दिया। तो आपको पता लगाना है कि उसको, वो शॉपकीपर को मोर या कि लेस परसेंटेज ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइसेस। जब उसने वो टैग को अगर ज़्यादा बढ़ा के लगाया तो उसको कम या मोर परसेंटेज में क्या फ़ायदा हुआ उसको, आपको वो बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा मार्क प्राइस, लेट द मार्क प्राइस कितना है, 100 है, ठीक है। सो प्राइस इंक्रीज्ड, कितने बार उसने पहले प्राइस निकाला, 25%। इट मीन्स दैट ये 100 में जब वो 25 इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 125 होगा। अब जो देयरफॉर उसकी जो मार्क प्राइस है, जो भी आइटम है उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना होगा, 125 रुपीज़ होगा। ओके, सो उसके बाद उसने डिस्काउंट किया उस चीज़ पे। डिस्काउंट गिवन कितना है यहाँ पे, 20% है। किस पे, ये मार्क प्राइस में उसने डिस्काउंट किया। सो 20/100 इंटू 125, दिस 20 विल कट दिस वन। सो क्या आएगा रुपीज़, इसको 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 5 ज़ा मीन्स 25 रुपीज़ आया, है ना। तो डिस्काउंट 20% में कितना आया, ₹25 आया। अब उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू, वी नो दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ओके, सो मार्क प्राइस कितना, 125, डिस्काउंट उसका कितना हुआ, 25। सो 100 रुपीज़ आया, मतलब सेलिंग कितना हुआ, 100 रुपीज़। तो इसका मतलब है आप लिखोगे इफ़ डिसाइडेड प्राइस अगर ₹100 होता है तो ही गेट ₹100, है ना। हैंस ही गेट कितने परसेंट, ओनली 0%, मतलब 100 में से 100 गया तो कितने, इसको कुछ हो रहा है कि फायदा, नो, दैट इज he is not getting a more or he is not getting the less, means 0% he is getting. Have you understood, students? Okay, so in the next lecture video I am going to start with the next topic, that is commission. Thank you.